دعا کریں. تھینک یو لارڈ, تھینک یو جیزس. آسمانی باپ میں تیرا شکر کرتی ہوں, تو رحم کرنے والا ہے, تو ترس کرنے والا خداوند ہے. اے خداوند تو ہمارے ساتھ رہنا خداوند, جب تک میں تیرے کلام کو شیئر کروں خداوند, تو مجھے عقل و دانائی دینا, اپنے الفاظ دینا, تاکہ میں تیرے مطابق بول سکوں اور تیرے نام کو جلال دے سکوں. اسی کے نام سے آمین. آج ہم دیکھیں گے سیموئل کی کتاب, اس کا پہلا باب اور اس کی 13 باب. اس میں سیموئل نبی کیا کہتا ہے کہ میں اگر خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو, کیونکہ اس نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں. تو خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں, اس کے حضور جھکیں, اس سے دعا کریں. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن ہوتا ہے, ہم جڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ. اور جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ ہماری شخصی معاملات میں تبھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے, جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں دعا کے ذریعے. تو اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو ہمارا تعلق اس کے ساتھ کم ہوتا جاتا ہے. اگر دعا میں کمی ہے تو تعلق بھی کم ہے. اگر دعا بھرپور طریقے سے ہے تو پھر بے مثال جو ہے وہ تعلق خدا کے ساتھ ہمارا جڑ جاتا ہے. آج کل جو ہے وہ دعا کی بہت زیادہ کمی ہے, کیونکہ ہم آج کل موبائل دیکھتے ہیں, میڈیا دیکھتے ہیں, اور دعا میں ہم کم جھکتے ہیں. کیونکہ دعا ہی ایک ذریعہ ہے جو ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ہے, تبھی تو ہم اس کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہوتا ہے. اگر ہماری دعائیہ زندگی کم ہو جاتی ہے تو ہماری طاقت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور انسان کی روح جو ہے وہ نجات سے کیا ہو جاتی ہے, دور ہو جاتی ہے, اور شفا کا کام بھی رک جاتا ہے. اس لیے دعا جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے. ڈینیل جو تھا وہ بھی دن میں 3 دفعہ دعا کرتا تھا, اور خدا کے حضور جھکتا تھا, اور خدا اس کی ہر بات کو پورا کرتا تھا. دعا جو ہے وہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اس کے مخالفوں کے لیے کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر ہم دعا کم کریں گے تو اس کے مخالف جو ہیں وہ ہمارے اوپر اٹیک کرنا شروع کریں گے. اس لیے دعا جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری زندگی میں اس کا کیا ہے, عمل دخل ہے. اور اگر دیکھا جائے تو مرکز کی انجیل میں اس کے 14 باب اور 38 آیت میں لکھا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. تو اس لیے ہمیں دعا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں. وہاں پہ میں آپ کو ایک دعا کے مطابق ہی ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں گی کہ ایک آدمی تھا جو ہر روز دعا کر کے سوتا تھا, اور بہت امیر ترین وہ آدمی تھا. اور اس نے جب دیکھا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ بہت امیر ہے, اور پورے ملک میں اس کا چرچا تھا کہ یہ بہت زیادہ امیر ہے, اور اس کے گھر میں کس طرح ڈاکوؤں نے کہا کہ کس طرح ڈاکہ ڈالنا چاہیے. تو جب وہ ڈاکو رات کے وقت آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو بہت زیادہ اس نے اپنی فوج کھڑی کی ہوئی ہے سپاہیوں کی, تو یہ ہم اس کے گھر ڈاکہ کیسے ڈال سکتے ہیں. تو جب پتہ چلا ڈاکوؤں کو کہ یہ بندہ تو دن رات جو ہے وہ دعا میں جھکا رہتا ہے, اپنے آپ کو, اپنے گھرانے کو اور اپنے سارے مال متاع کو خدا کے حضور دیتا ہے, تو اس لیے جو خدا کے فرشتے تھے وہ 24 گھنٹے جو تھے وہ اس کے گھر کے اوپر رہتے تھے. تو اس لیے دعا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. دعا تب ہوتی ہے جب آپ خدا پر انحصار کرتے ہیں, اور دعا کی حالت میں آپ خود اگر دعا نہ کریں
तो आप अपने आप पर खुद इन्हिसार करते हैं, क्योंकि दुआ जो है वो बहुत ताकतवर हथियार है। अगर हम दुआ को कम करते जाएंगे तो हमारी ताकत जो है वो बहुत ही कम होती जाएगी। दुआ ना करना खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना अमल भी है। जब हम दुआ में कोताही करते हैं तो खौफनाक नताइज जो हैं वो सामने आते हैं। फिर हमारी ताकत कम होती है, हमें शिफा नहीं मिलती और आसमानी बरकतों का नज़ूल जो है वो कम होता जाता है। तो इसीलिए खुदा ने यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि जब हम दुआ को कम करते हैं तो बहुत सारी आजमाइशें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। तो दुआ के ज़रिए से हम जो हैं वो उसकी बरकतों को हासिल करते हैं और वो अपने कलाम के भेदों को हम पर इयां करता है। जितना ज़्यादा कनेक्शन जो है वो उसके साथ हमारा दुआ के ज़रिए होगा, उतनी ही बरकत जो है वो हमें मिलती जाएगी और हम अबलीसी ताकतों पे भी फतह पाएंगे। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में झुकेंगे, जिस तरह मूसा जो था वो हुरब के पहाड़ पे गया और वहां पे उसने दुआ की और ठहरा रहा खुदा के हुजूर, तो जब वो वापस आया तो लोग उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो नूरानी चेहरा था उसका। क्यों? क्योंकि वो खुदा की हजूरी में था। इसीलिए जब हम दुआ के जरिए खुदा की हजूरी में रहते हैं तो खुदा हमें अपने बरकत देता है और उसका जो जलवा है वो हमारे ऊपर रहता है और लोग वाकई ही कहते हैं कि ये वाकई ही खुदा की बंदा है और वाकई ही इसकी मुंह से, इसकी बॉडी से, इसके बोलचाल से, इसके पहनावे से, इसके किरदार से खुदा नजर आता है। तो इसलिए दुआ जो है वो हमें हर वक्त जो है वो खुदा के हुजूर करनी चाहिए और जब हम दुआ उसके हुजूर करेंगे तो वो हमें अपनी बरकतों से मालामाल करता जाएगा। आमीन। तो इसलिए खुदा चाहता है कि हम उसके हुजूर झुकें, उससे दुआ करें, क्योंकि उसने इंसान को पैदा ही अपने इबादत और अपनी प्रस्तश के लिए किया है। क्योंकि पैदाइश की बुक में अगर देखें तो वहां पे उसने कहा है कि आओ हम इंसान को बनाएं। तो वो इंसान को बनाने का मकसद क्या है कि वो उसके साथ रफाकत रखे, उसके साथ बातचीत करे। तो इसीलिए वो ठंडे वक्त में आदम और हवा से मिलने के लिए आता था ताकि उनसे बातें करे। और इसी तरह जब हम दुआ में बैठते हैं तो ये खुदा के ज़रिए जो है वो दुआ के ज़रिए खुदा के साथ बातें करना होता है। तो इसलिए खुदा जो है वो हमें कहता है कि हमें ढूंढता है, जिस तरह वो आदम और हवा को ढूंढता था और उसने कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा मैं इधर ही हूँ। उसने कहा कि तूने मेरी आवाज़ को पहचाना? उसने कहा नहीं, इसलिए कि मैं नंगा था। क्यों? क्योंकि खुदा उसके साथ जो था वो बातें करना चाहता था। तो इसलिए दुआ एक कनेक्शन है खुदा के साथ बातें करने का। तो आजकल दुआ बहुत कम हम लोग करते हैं, क्योंकि दुआ के साथ ही सारे राब्ते जो हैं वो खुदा के साथ मुमकिन होते हैं। जिस तरह हम एक रिलेशन अपने दोस्त के साथ रखते हैं, हम चाहते हैं कि हम रोज़ उसके साथ मिलें, तो इसी तरह हमें खुदा के साथ ये रिश्ता रखना है कि हम रोज़ दुआ के साथ दुआ में बैठें और उसके साथ रफाकत रखें और वो अपने कलाम के गहरे भेदों को फिर हम पर इयां करता है। उसका पाक रूह हम पर जुम्बश करता है और वो तब हम बहुत सी ऐसी बातों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और कलाम के अंदर से खोज सकते हैं और लोग फिर कहते हैं कि ये वही इंसान है जो हम में बैठता था। आज तो ये बहुत अक्लमंद है, आज तो बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से होता है जब हम उसके हुजूर बैठते हैं और उससे दुआ के ज़रिए इस कुव्वत को और इस ताकत को
हासिल करते हैं, क्योंकि दुआ एक पावरफुल हथियार है। अगर कलाम मुकद्दस में देखें बाइबल में, तो बहुत से लोग जो थे वो खुदा के हुजूर झुकते थे। नबी पैगंबर जितने भी थे वो खुदा के हुजूर झुकते थे और दुआ करते थे, और दुआ के ज़रिए से वो अपनी ताकत को और अपनी उम्मीदों को हासिल करते थे, क्योंकि दुआ जो है वो इंसान के लिए बहुत एक ज़रूरी हथियार है। और जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देनी थी, तो सारी रात उसने दुआ की और खुदा से कुव्वत हासिल की, और उससे अपने मसा को हासिल किया दुआ के ज़रिए से, और फिर जाकर उसने इस काम को कंप्लीट किया। अगर हम भी आज कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि हम दुआ करें और फिर अपने काम का आगाज़ करें, और फिर खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है। और हमें आज अपने बच्चों को और अपने ख़ानदानों को लेकर बैठना चाहिए, क्योंकि दुआ की इतनी ज़्यादा कमी है कि हम मोबाइलों में खो गए हैं। हम बहुत सी ऐसी उलझनों का शिकार हो गए हैं कि हम खुदा को भूल गए हैं। हम दुआ के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते, हम बैठते नहीं हैं कि हम उसको थोड़ा सा टाइम दे सकें। आज भी वो अपनी बाहों को फैलाए खड़ा है कि कब मुशर्रफ बेटा मेरी तरफ लौटे, कब वो झुके और मैं उसे अपने गले से लगाऊं, क्योंकि आज वक़्त बहुत नज़दीक है, वो बहुत जल्द आने वाला है, काम बहुत ज़्यादा है। जब हम दुआ करेंगे तो हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जो तड़प रख रहे हैं कलाम की, जो खुदा को देखने की तड़प रख रहे हैं, और खुदा दुआ के ज़रिए से ही खुदा हम पर एयां करेगा कि वो फलां बंदा या फलां बंदी किस जगह बैठी है और कहाँ पे उसको ये ज़रूरत है। तो ये दुआ ही हमें ये सब कुछ बताती है। हमारे ज़हनों पे उसका राज तब ही होता है जब हम उसके साथ कनेक्शन के साथ रहते हैं। अगर हम दुआ को छोड़ देते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आती। तो जब हम दुआ करते हैं तो हम एक ताकत पाते हैं, एक कुव्वत पाते हैं, और खुदा में बढ़ते और तरक्की करते जाते हैं, क्योंकि दुआ जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो कलाम मुकद्दस में बहुत सी मिसालें हैं कि किस तरह उसके नबी जो थे, उसके पैगंबर जो थे, वो दुआ में झुकते हैं और वो खुदा से अपनी कुव्वत को मांगते हैं। तो जिस तरह दाऊद नबी हर वक्त कहता है कि मैं तो तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन मेरी फिक्र करता है, वो मेरा मददगार है, वो मेरा छुड़ाने वाला है। वो क्यों मेरा मददगार है, वो मेरा क्यों छुड़ाने वाला है? क्योंकि दाऊद नबी उसके हुजूर झुकता था। अगर उससे कोई खता, कोई गलती हो भी जाती थी तो वो इकरार करता था, वो दुआ करता था और खुदा से माफ़ी मांगता था, और खुदा उसको क्या करता था, बहाल करता था। आज भी हमारी ज़िंदगियों में इस चीज़ की कमी है कि हम उसके हुजूर नहीं बैठते, उसके हुजूर दुआ को बहुत कम हमने कर दिया है, जबकि दुआ जो है वो हर वक्त उसके साथ एक कनेक्शन है। जिस तरह हम आज मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते, इस तरह हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को अपना लें कि दुआ हमारी सांसें हैं। अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो हमें सांस नहीं आएगी, क्योंकि दुआ जो है ये बहुत ही ज़रूरी हथियार है हमारे लिए। क्योंकि देखा जाए तो बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ही कम इस चीज़ को जानते हैं और देखते हैं, और बस छोटी सी दुआ करके तो वो सो जाते हैं, लेकिन ये नहीं है। अगर आप दुआ करेंगे तो आपको खुदा अपना पाकरू अदा करेगा, और वो पाकरू जो है वो खुदा से मदद लेकर आपको खुदा के गहरे भेदों को आप पर एयां करता है। ये कैसे है? ये कनेक्शन दुआ के ज़रिए से है।
घंटों घंटे दुआ करना, और ये नहीं कि थोड़ी सी दुआ करके और बस जी मैं थक गया हूँ, इस तरह खुदा के साथ बहाली नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा आज अपने लोगों को खोज रहा है और हमें भी ऐसे लोग बनना है ताकि हम उसके हजूर जा सकें और उससे दुआ कर सकें। तभी हमारी सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां और सारे दुख जो हैं वो हमसे दूर होंगे जब हम उसके हुजूर झुकेंगे और उससे हम दुआ करेंगे, क्योंकि दुआ एक ज़बरदस्त और पावरफुल हथियार खुदा ने हमें दिया है। और सुबह सुबह उठ के दुआ करना जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने सारा दिन के काम काज को खुदा के हुजूर जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। और खुदा जो है हमें हर काम में बरकत देता है और हमें ज़िंदगी तंदुरुस्ती जो है वो उसी की तरफ से मिलती है। और रात को जब हम सोते हैं तब भी हमें अपने आप को उसके हाथों में देकर सोना है, ये बोल के नहीं, ये दुआ के ज़रिए हम बैठें, अपने ख़ानदानों को लेकर बैठें, अपने बच्चों को लेकर बैठें, ना कि बच्चे जो हैं आजकल के वो मोबाइल पे, मेरा अपना बेटा मोबाइल पे बहुत ज़्यादा बैठता है, लेकिन ये गलत बात है, मोबाइल देखना गलत बात है। हमें बच्चों को गाइड करना है कि वो दुआ में झुकें, दुआ में ठहरें और खुदा से उन बरकतों को हासिल करें। जब हम दुआ करेंगे तो दुआ के ज़रिए से बड़े गहरे भेद जो हैं वो आप पर खुलते हैं, जो चीज़ आपको नहीं भी आती वो भी आनी शुरू हो जाती है और खुदा आपको बुलंदियां अता करता है। मैं आपको अपनी एक मिसाल बताऊंगी, गवाही बताऊंगी कि शादी से पहले मैं किस तरह खुदा के हुजूर दुआ करती थी। अभी मैंने ये 2025 में मैंने खुदा से भरपूर वादा किया है कि मैं तेरे हुजूर ज़्यादा से ज़्यादा दुआ के ज़रिए वक्त गुजारूंगी। तो उस वक़्त क्या था कि मैं जो भी दुआ में मांगती थी, कहती थी, खुदा मेरे लिए वो करता था। ये क्यों था? क्योंकि मेरा कनेक्शन जो था वो खुदा के साथ था। और खुदा से जब भी मैंने दुआ करनी है और खुदा ने मेरी उस दुआ को सुनना है और कबूल करना है। और ये ज़रूरी है कि हम जो हैं वो अपने आप को उसके हाथों में दें, और हम खुद भी, जब हम खुद बैठेंगे तो हमें देखकर हमारे बच्चे बैठेंगे, वो यही देखेंगे कि हमारा माँ बाप जो है वो बैठा हुआ है। मैंने भी इसी तरह अपने माँ बाप को देखकर ही सीखा था और संडे स्कूल जाकर सीखा था कि किस तरह हमें खुदा के साथ चलना है, और हमें छोटी सी छोटी दुआएं जो हैं वो बच्चों को सिखानी शुरू करनी है ताकि वो मजबूत होते जाएं और एक ज़बरदस्त सूरमा बने। और खुदा जो है वो चाहता है कि आज हम अपने ख़ानदानों में इस बहाली को लेकर आए कि हम दुआ करें। 2025 में ये गोल रखें कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में झुकना है, और दुआ ही हमारे बंधनों को तोड़ती है, दुआ ही हमारी परेशानियों को दूर करती है, हमें ताकत देती है, हमारी हर मुश्किल को दूर करती है और हमें बुलंदियों पर लेकर जाती है। जब हम दुआ में झुकते हैं तो इज़्ज़त, दौलत, शोहरत जो है वो तभी हमें अता करता है जब हम उसके हुजूर झुकते हैं। उसने अपने कलाम में फरमाया है कि तू मेरी तरफ रुजू ला तो मैं तेरी तरफ रुजू लाऊंगा। यानी कि तू मेरे हुजूर मेरी तरफ आ, दुआ कर, कलाम पढ़, तो मैं तेरी तरफ आऊँगा। ये शर्त है। अगर हम कहें कि नहीं, सिर्फ वो ही हमें याद करे, वो ही सब कुछ करे, तो ये गलत है, क्योंकि उसने सारी दुनिया को बना दिया। तो उसने इंसान को, उसने अपने मुंह से सारी दुनिया को बनाया, लेकिन उसने इंसान को अपने हाथों से खलक किया और उसमें अपनी सांस, अपना दम फूंका। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि ये मेरे साथ इसका रिलेशन हो। आज भी वो ढूंढ रहा है लोगों को, ऐसे लोगों को जो इंटरसेसर हों, जो दुआ में झुकें, जो निगाहबान हों और रातों के पहरों में उठ उठ कर दुआ करें अपने घराने के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मसीही बहन भाइयों के लिए,
تاکہ وہ خدا کی نجات کے رستہ میں داخل ہوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. کھیت بہت بڑا ہے اور دعا جو ہے وہ مزدور جو ہیں وہ کم ہیں، کیونکہ دعا جو ہے وہ انٹرسیسر ہی کر سکتے ہیں اور وہی کھوج سکتے ہیں ان لوگوں کو جو دعا کے لیے جن کو تڑپ ہے، جن کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم نے دعا میں زیادہ سے زیادہ جھکنا ہے. خدا آپ کو برکت دے. Amen.